Students, very good morning to one and all. Good morning, sir. Good morning, sir. So, in our last discussion, Good morning. we were discussing this Bragg's law, and before that, we have discussed why X-rays are playing an important role in solid-state chemistry or crystallography. So, we have answered this question because out of all these electromagnetic radiations that are there, cosmic rays, gamma rays, x-rays, ultraviolet, UV, visible, IR, NMR, out of all these electromagnetic radiations, so we are interested only in x-rays because the wavelength associated with x-rays, it is of the order of this interplanar spacing, that is d. If this wavelength is out of the order or it is not comparable with this interplanar distance, then we cannot use that wavelength. So this is further supported by this Bragg's law. So Bragg's Acha. derived a mathematical expression 2d sine theta equal to n lambda, and 2d sine theta equal to n lambda. So n is the order of diffraction, lambda is wavelength of X-rays, 2 is simply number 2, d is the interplanar distance, and sine theta is the sine of the angle of incidence. So this 2d sine theta equal to n lambda, this is very much important relationship in crystallography, that is known as Bragg's law. So now today I am going to discuss with you how we can derive this 2d sine theta equal to n lambda equation. Correct? So we have this picture. This picture is visible to all of you. Yes, sir, it's visible. Yes, sir. So in this picture, we are having two waves, wave number 1 and wave number 2. And these are nothing but these are X-rays. Suppose one X-ray wave, this is incidenting our crystal system at lower plane at point B. And at point B, we are having some atoms, ions, or molecules in our crystal. Similarly, wave number 2, it is incidenting on our crystal plane at some particular point A, where some particular atom, ion, or molecule is located. So A and B, these are the two atom, ions, or molecules. Atom B is located at lower plane, and just above that plane we are having atom A, and these two planes on which atom A and atom B falls, they are separated by a distance d. They are separated by a distance d, and this d is known as interplanar distance d. So this line joining point A and point B, so this line or this separation between point A and B, this is equal to D, that we have to keep in our mind. So what is D? D is the interplanar distance, means the separation between two successive planes. So we are having lower plane, we are having just above that plane. So two planes are there, they are separated by this distance D, and this separation of this distance D, we have to keep in mind. So till this discussion, we have discussed that two waves, two parallel waves, they are incidenting on point A and point B. And point A and point B, they are located at two different planes. Now, wave 1 is having some wavelength lambda. Wave 2 is also having the same wavelength because we are using monochromatic X-rays. Monochromatic X-rays means both wave 1 and wave 2 will be consist of same X-rays having some unique, some particular or some exact value of this wavelength. So monochromatic radiations are those radiations which consist of only a single wavelength. So lambda value for wave 2 and lambda value for wave 1 will be same because we are interested in the X-rays,
copper K alpha, copper K beta, like that. So suppose copper K alpha X-rays, we are using the wavelength associated with copper K alpha 1.54 something angstrom. So that will be the value of the wavelength lambda. Now, after incidenting these two waves, they gets diffracted, and this diffracted wave path is shown again from this B to D and this A to in the forward direction. So we are having two incident waves, we are having two diffracted waves. Now these two waves are incidenting at an angle theta, or they are making an angle of theta with planes. Suppose wave number 2 is making an angle theta, incident angle is theta. Since wave 2 and wave 1 both are what? Parallel waves. Parallel. Therefore, wave A will also make an angle of theta with plane, lower plane, you can see. Because lower and upper planes, we are talking that these are parallel planes. And wave 1 and wave 2, they are also parallel to each other. Therefore, whatsoever the angle is made by wave 2 on upper plane, the same angle is made by wave 1 on the lower plane. So this angle theta is the angle of incident. So for both wave 1 and wave 2, this angle is theta. Clear? Now, our aim is to calculate the path difference between these two diffracted waves. Our aim is to calculate these path difference between these two diffracted waves. Path difference means what will be the difference in their paths after they gets diffracted from point A and point B. So if we calculate the path difference, so how we can calculate it? Suppose we are drawing a perpendicular from point A to C. So A to C is a perpendicular. Similarly, A to D, this is another perpendicular. So after A and after D, the path of wave 2 and wave 1 will be same. Will be same or not? After A, when they get diffracted, and after point D, when this wave 1 get diffracted, both of these waves will be having same path difference, same path, not difference. Similarly, before reaching to point A, the path followed by wave 2, this is exactly same as the path followed by wave 1, so as to reach at point C. कहने का मतलब ये है सीधे सीधे शब्दों में कि जो वेव 1 जो है वो सी पॉइंट तक आने में जितना रास्ता ट्रेवल करेगी उतना ही रास्ता वेव 2 जो है ए पॉइंट तक आने में ट्रेवल करेगी. करेक्ट? तो यहां तक दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 है. वेव 2 जो है वो ए से डिफ्रैक्टेड होने के बाद जितना पाथ फॉलो करेगी, इसी तरह से जो वेव 1 है वो डी से आगे जितना पाथ फॉलो कर रही है, सो आफ्टर पॉइंट ए एंड पॉइंट डी दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा. बट वेव ए हैज टू ट्रेवल मच डिस्टेंस, वेव ए हैज टू ट्रेवल मच पाथ कंपेयर टू वेव 2. So wave 1 has to travel somewhat more compared to wave 2. और ये कितना ज्यादा ट्रेवल करेगी, that we have to calculate. That's why हमने क्या किया है, जो C to B इसका जो एक्सेस पाथ है उसका एक्सेस पाथ होगा वेव 1 का C to B plus B to D. So C से लेकर B plus B से लेकर के D, so that much path it has to travel more as compared to wave 2. Students, you are agree with me? हमने क्या Yes, किया sir. है, उनके ए और सी पर इंसिडेंट करने से पहले जो पाथ्स हैं वो इक्वल कर दिए हैं, ए और डी के बाद के इक्वल कर दिए हैं. बात आती है सी और डी के बीच की, तो वेव 1 जो है वो सी और डी
दोनों के बीच में जो पाथ है वो एक्सेस पाथ होगा, वो एक्स्ट्रा पाथ होगा, दैट विल बी ट्रेवल्ड बाय वेव 1. डू यू एग्री विद मी? Yes, sir. Now our ultimate aim or goal is to calculate the value of this path difference, means CB plus BD. CB plus BD, correct? So we are interested in the calculation of this path difference CB plus BD. Let's see how we can calculate it. So in order to calculate this path difference, suppose we would like to calculate CB in the triangle ABC. Triangle ABC में we are interested in the calculation of this value CB. How much CB is? इसके लिए क्या करना होगा हमें? पहली बात तो ये देखिए कि जो हमारे पास A to C है, A to C हमने क्या किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वेव 1 के ऊपर. A to C is perpendicular on wave 1. इसका मतलब है कि जो ये एंगल ACB, what will be the value of this angle ACB? 90 degree. 90 degree, of course. तो ये एंगल ACB that is 90 degree, correct? अब एक बात देखिए कि हमारा इंसिडेंट एंगल थीटा है. क्या है? थीटा. Theta. और हमने A to B, ये भी क्या है? एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है दोनों प्लेनों की. तो ये जो एंगल होगा, माय कर्सर इज देयर, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दोनों एंगल्स का सम, ये वाला जो एंगल है और ये एंगल जो है, sum of these two angles will be equal to what? 90 degree, 90 degree. correct? This angle plus this angle will be 90 degree. और अगर बात करें हम इसकी, ये लाइन और ये लाइन, so both of these lines are also perpendicular to each other. So this angle theta plus this angle will also be 90 degree. इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री का है. दूसरी तरफ देखें तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बोथ आर 90 डिग्री. इसका मतलब है कि ये बीच वाला एंगल कॉमन हो गया. ये तो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है, नीचे वाले में भी. इसका मतलब ये होगा कि जो इस एंगल की वैल्यू होगी, सेम वैल्यू ऑफ द एंगल विल बी देयर. इसका मतलब इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. तो बच्चों किसी को कोई डाउट है इसमें कि व्हाई दिस एंगल CAB is equal to theta? एंगल CAB is equal to theta. किसी को कोई डाउट इसमें? दोबारा से एक बार बता रहा हूं कि जो एंगल थीटा, ये वाला एंगल प्लस ये जो ब्लैंक वाला एंगल है, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि बोथ ऑफ दीज लाइंस, जो वेव 2 वाली लाइन है और ये वाली जो AC है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में. इसी तरह से ये सॉरी, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर. इसका मतलब दिस एंगल थीटा प्लस दिस ब्लैंक एंगल विल आल्सो बी 90 डिग्री. तो ये बीच वाला जो ब्लैंक है ये तो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब कॉमन हुआ. इसका मतलब जो ऊपर वाला एंगल है वही ये नीचे वाला एंगल होगा. दिस मींस दैट इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा. समझ आया? तो अभी हमने प्रूव कर दिया है कि दिस एंगल CAB is equal to theta. Angle CAB is equal to theta and angle ACB, this is equal to what? 90 degree. 90. 90. हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई है. क्या हो गई है? Right angle triangle. triangle ACB, where at point C we are having this right angle. तो जो AC क्या कहलाएगा इसका? बेस. CB क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर. और AB क्या कहलाएगा इस ट्रायंगल में? हाइपोटेन्यूज. Hypotenuse. तो अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं इस ट्रायंगल की कि AC इज बेस, BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज हाइपोटेन्यूज. अगर किसी को इसमें डाउट है तो मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि जो एक्यूट एंगल होता है और जो 90 डिग्री का एंगल होता है, जिस साइड पर दोनों एंगल्स होते हैं वो बेस कहलाती है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड
हाइपोटेन्यूज कहलाती है। सी पॉइंट पर राइट एंगल है तो सी के सामने वाली जो साइड है ए बी है, और जो थर्ड साइड है वो उसका परपेंडिकुलर कहलाती है। तो अभी हमारे पास जो ट्रेंगल है ए सी बी, इस ट्रेंगल में हमें पता चल गया है कि विच वन इज बेस, विच वन इज हाइपोटेन्यूज, विच वन इज परपेंडिकुलर। और ये अगर हमें पता है, और इसमें से इस ट्रेंगल में से हमें एक पर्टिकुलर साइड की वैल्यू भी पता है। क्या है वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट साइड? ए बी की वैल्यू नहीं पता है क्या हमें? व्हाट इज ए बी? ए बी। P. तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें कोई एक साइड पता हो और दूसरी निकालनी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह के कुछ रिलेशंस लगाते हैं। और लगाने का जो फंडा सीधे सीधे होता है कि जो साइड आपको चाहिए, कौन सी साइड चाहिए आपको? हमें चाहिए कौन सी? सी बी या बी। तो बीसी अपॉन जो साइड गिवन है, बीसी अपॉन ए बी, तो बीसी क्या है? बीसी क्या है आपकी? परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। Sin theta. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रिलेशन होता है साइन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा याद है आपको कैसे होता है? 10th क्लास में पढ़ा होगा। Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. तो BC अपॉन Yes, sir. AB दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। अब BC मान लो ये x है, हमें कैलकुलेट करना है, तो BC विल बी इक्वल टू BC अपॉन D विल बी इक्वल टू साइन थीटा, तो BC विल बी इक्वल टू D साइन थीटा। इसका मतलब है कि ये एक्सेस पाथ जो वेव 1 ने ट्रेवल किया है अप टू पॉइंट B तक, वेव 1 ने जो एक्सेस पाथ ट्रेवल किया था दैट वाज इक्वल टू D साइन थीटा। वो क्या था? D साइन थीटा, करेक्ट। इसी तरह से अब हम अगर मतलब हमने सी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नाउ आवर एम इज टू कैलकुलेट बी डी आल्सो, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टोटल सी बी प्लस बी डी। तो बी डी की बात करें तो बी डी में भी वैसे ही है। बी डी में भी क्या है कि आपका ऊपर वाला एंगल थीटा होगा। वो ऊपर वाला एंगल थीटा कैसे होगा? क्योंकि ये जो वेव नंबर 2 है, ये अगर थीटा एंगल पर इंसिडेंट करेगी पॉइंट ए पर, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा और जो डिफ्रेक्टेड वेव होगी वो भी थीटा एंगल पर ही डिफ्रेक्टेड होगी। इसका मतलब है कि ये डिफ्रेक्टेड के बीच में और ये जो अपर प्लेन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो फिर थीटा होगा। फिर वही करेंगे हम कि ये थीटा प्लस ये ब्लैंक एंगल, ये 90 का होगा, और ये थीटा, ये वाला ब्लैंक एंगल प्लस ये एंगल, ये भी 90 का होगा। ब्लैंक कॉमन है तो जो एंगल ये रिफ्लेक्टेड एंगल ये होगा थीटा, उसी एंगल पर ये वाला हमारा होगा एंगल बी ए डी। तो बी ए डी फिर थीटा हो गया, बी ए डी थीटा हो गया। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब है कि अगेन फिर ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर है बी डी ट्रायंगल का, और जिसका हाइपोटेन्यूज डी है, और ये वाला बेस है। अगर हम फिर दोबारा से साइन थीटा लगाते हैं तो वी विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ बी डी अपॉन डी, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, और बी डी की वैल्यू क्या आती है? डी साइन थीटा। तो कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन इज दैट कि वेव 1 और वेव 2 दोनों के बारे में बात करें तो दोनों ने सेम रास्ता ट्रेवल नहीं किया है। वेव 2 जो है वो छोटे रास्ते से डिफ्रेक्ट हो चुकी है, जबकि वेव 1 को कुछ एक्सेस पाथ ट्रेवल करना पड़ा है। और ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का जो है यूज करने के बाद वी फाउंड दैट दिस पाथ इज इक्वल टू सी बी प्लस बी डी। और जो सी बी की वैल्यू आती है वो डी साइन थीटा आती है, इसी तरह से बी डी की वैल्यू भी डी साइन थीटा आएगी। और ये जो सी बी प्लस बी डी दोनों की अगर बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू 2d साइन थीटा। और ये जो 2d साइन थीटा है, यानी कि ये जो पाथ डिफरेंस है, ब्रैग्स लॉ ये कहता है कि जब जब ये पाथ डिफरेंस यानी कि 2d साइन थीटा जब जो है ये वेवलेंथ ऑफ एक्स रे के बराबर होगा, यानी कि लैम्डा के बराबर होगा, 2 लैम्डा के बराबर होगा, 3 लैम्डा के बराबर होगा, 4 लैम्डा के बराबर होगा, तब हमारा क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होगा कि ये जो डिफ्रेक्टेड वेव्स हैं ए से आगे और पॉइंट डी से आगे जो डिफ्रेक्टेड वेव्स जा रही हैं, ये आपस में इस तरह से सुपर इम्पोज करेंगी कि
सुपर इम्पोजिशन के पॉइंट पर जो है इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वहां पर डिफ्रेक्शन पैटर्न जनरेट होगा। और अगर ये वाला पाथ डिफरेंस मींस सी बी प्लस बी डी जब जब ये मतलब वेवलेंथ के इक्वल नहीं होता है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा के इक्वल नहीं होता है, तो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो ए से आगे की जो वेव है और डी पॉइंट से आगे की जो वेव है वो दोनों आपस में क्या करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि इन दोनों की जो है कॉम्बिनेशन के बाद जो वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी और वहां पर क्या होगा, डार्कनेस होगी। तो ऐसे रीजन्स जहां पर इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है ये एन लैम्डा के बराबर है, वी विल बी हैविंग सम ब्राइट पैटर्न। और जहां जहां पर ये पाथ डिफरेंस जो है एन लैम्डा के बराबर नहीं होगा, डार्क पैटर्न। तो डार्क ब्राइट इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई देगा। अब ये जो डिफ्रेक्शन का ऑर्डर होता है इसका जो हम वैल्यू डिनोट करते हैं वो n से करते हैं। 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द डिफ्रेक्शन। तो किसी को इस वाली इक्वेशन के डेरिवेशन में इसकी क्या इंपोर्टेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मीनिंग है, डिस्ट्रक्टिव का क्या मीनिंग है, कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, सो ये सारे क्वेश्चनों में अगर कोई डाउट है देन दिस सेशन इज ओपन नाउ फॉर डिस्कशन। आपको इसकी इंपोर्टेंस पता होनी चाहिए, ब्रैग्स लॉ की क्या इंपोर्टेंस है, इसका डेरिवेशन पता होना चाहिए, व्हाई दिस पाथ लेंथ इज इक्वल टू 2d sin थीटा ये आपको आना चाहिए, इंसिडेंट एंगल, ऑल दीज थिंग्स, ये मैंने जो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूले लगाने बताए हैं, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। और इसका इंपोर्टेंस क्या है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का, जहां जहां इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पे हमें लाइट ज्यादा दिखाई देगी, और जहां जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव होगा तो हमें लाइट जो है वो कम दिखाई देगी। अब मैंने इसको दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दिया है। कुछ बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, दैट्स व्हाई टाइम टू टाइम आई एम ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज आल्सो। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी को प्रॉब्लम होगी इसमें। हाँ जी कोई डाउट है किसी को? सर एक बार ना ब्रैग्स लॉ का इंपॉर्टेंस रिपीट कर दो सर एक बार। ब्रैग्स लॉ ये कहता है कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, मैथमेटिकली अगर हम कहें तो ये जो W है एच ब्रैग और WL ब्रैग दोनों फादर और बेटे थे। WL ब्रैग और WH ब्रैग दोनों फादर और सन दोनों थे। दोनों ने जो लवे जो था डिफ्रेक्शन पैटर्न उसको स्टडी किया। लवे डिफ्रेक्शन पैटर्न से स्टडी करने पे इन दोनों के माइंड में ये आइडिया आया कि हम जो दोनों वेव्स हैं, वेव 1 वेव 2, वेव 1 जो है वो पॉइंट बी पर इंसिडेंट कर रही है, वेव 2 पॉइंट ए पर इंसिडेंट कर रही है और उसके बाद ये डिफ्रेक्ट हो जाती हैं। वैसा ही क्रिस्टल्स के अंदर होता है। क्रिस्टल्स में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं प्लेन्स में, और उन पार्टिकल से क्या होता है, ये डिफ्रेक्शन जो है वो होता है। डिफ्रेक्शन का वैसे मैं बताऊं, किसी ऑब्स्टेकल लाइट के रास्ते में अगर कोई चीज आती है तब लाइट डिफ्रेक्ट होती है। तो ये एटम साइंस मॉलिक्यूल जो है ये मान लो कि कोई चीज है जो लाइट के रास्ते में आ जाती है, और जब ये चीजें लाइट के रास्ते में आती हैं तो लाइट डिफ्रेक्ट होती है। और ये डिफ्रेक्शन जो है वो स्कैटरिंग का ही एक पार्ट है। स्कैटरिंग तो सभी डायरेक्शंस में होती है, मतलब ऑल डायरेक्शंस में डिफ्रेक्शन होता है, ये स्कैटरिंग होती है। लेकिन अगर ये स्कैटरिंग किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो रही है देन वी कॉल इट एज डिफ्रेक्शन। तो जब एंगल डिपेंडेंसी आ जाती है स्कैटरिंग में देन वी कॉल इट एज डिफ्रेक्शन। तो दोनों जो है फादर और जो सन थे दोनों ने ये पाया कि जब जब दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा, जो वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं
तब तब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब तब हमें लाइट दिखाई देगी, तब तक हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। और जब जब ये पाथ डिफरेंस जो है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल नहीं है, कंपेरेबल का मतलब एग्जैक्टली इक्वल, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, तब तक क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो उन रास्तों पे क्या होगा, अंधेरा होगा। तो ये जो डिफ्रैक्टेड वेव्स हैं, डिफ्रैक्टेड वेव्स जाके आपस में फिर दोबारा मिलेंगी। ये दोबारा इनका जो मिलना है दो तरीके से हो सकता है, या तो कंस्ट्रक्टिव वे में हो सकता है, या डिस्ट्रक्टिव वे में। कंस्ट्रक्टिव वेव का मतलब क्या होता है कि जो क्रस्ट है इस वेव का, वेव ए का जो क्रस्ट है और वेव जो बी का जो क्रस्ट है, यानी कि वेव 2 और वेव 1 का जो क्रस्ट है, आपस में एक जगह पर लाई करेंगे, ट्रफ एक जगह पर लाई करेंगे। तो जब क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ दोनों एक जगह पर लाई करते हैं, तो ऐसी वेव्स जो है सुपर इम्पोज होने के बाद कंस्ट्रक्टिव वे में सुपर इम्पोज होती है। और अगर उस जगह पर एक वेव का क्रस्ट पड़ रहा है, दूसरी का ट्रफ पड़ रहा है, यानी कि एक की जो है मैक्सिमम पड़ रहा है, दूसरे का मिनिमम पड़ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसल्ड आउट करते हैं। और क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर है, तो ये एडिटिव होता है। और क्रस्ट ट्रफ के ऊपर है, ट्रफ क्रस्ट के ऊपर है, तो ये सब्ट्रैक्टिव होता है। तो जब एडिटिव होंगी क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और जब ये सब्ट्रैक्टिव होता है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। जिन जगहों पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है वो ब्राइट दिखाई देते हैं, जिन जगहों पर इंटेंसिटी कम होती है वो क्या दिखाई देते हैं, डार्क। अब बताइए और किसी को डाउट है? मैंने आपको इंटरफेरेंस भी पढ़ा दिया है। लाइट So may I ask a doubt? यस यस So how we ensure that this electromagnetic wave or X-ray wave is going to for diffraction, not for scattering, or it is that at particular angle, that's why, or whatever is this? So I would like to answer this question. सॉलिड्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से सुना, इसका क्वेश्चन जो है बच्चे का वो कुछ मीनिंग लिए हुए है। सॉलिड्स में, और जो सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक पीरियोडिक फैशन में होता है, एक सिस्टमेटिक वे में होता है। ऐसे नहीं है, आपने देखा होगा कि अगर कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम है, बॉडी सेंटर्ड है या सिंपल है, तो जो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो फॉलो कर रहा है किसी पर्टिकुलर लॉ को। ऐसे नहीं है मनमाने तरीके से कहीं भी कोई एटम, आयन, मॉलिक्यूल बैठ जाएगा लेटिस के अंदर, नो 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 नो। तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक कोई ऐसी चीज लो जिसमें एटम, साइंस, मॉलिक्यूल जो है अपने तरीके से बैठे हुए हैं, जिसका जहां मन में आया वहां वो बैठा हुआ है भाई साहब। तो ऐसा सिस्टम जब होगा हमारा वेयर देयर इज नो ऑर्डर, सो उस सिस्टम पर जब एक्सरेज पड़ेंगी तो वहां पर होगा आपका स्कैटरिंग, सारी डायरेक्शंस में जो है लाइट्स स्कैटर्ड हो जाएगी। लेकिन सेम एक्सरे जब किसी ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम पे फॉल करती है वेयर देयर इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम, साइंस एंड मॉलिक्यूल, देन ड्यू टू दिस पीरियोडिसिटी, ड्यू टू दिस लॉ, ड्यू टू दिस ऑर्डर, जो है वो स्कैटरिंग की फिनोमिना होगी। लेकिन वो स्कैटरिंग जो है वो सभी डायरेक्शंस में नहीं होगा, दैट स्कैटरिंग हैज टू अकर इन सम यूनिक डायरेक्शंस ड्यू टू दिस ऑर्डर। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you so much, sir. तो सॉलिड्स में क्या है, हमारे जो एटम, साइंस, मॉलिक्यूल्स है वो पर्टिकुलर रूल के हिसाब से अरेंज्ड होते हैं, करेक्ट। अगर नॉर्मल कोई मटेरियल लोगे, सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही प्लीज। सो मे बी सम नेटवर्क इश्यू। मैंने ये कहा आपसे कि सॉलिड्स में जो एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स होंगे वो अरेंज्ड होंगे किसी पर्टिकुलर फैशन में, दे हैव टू फॉलो सम ऑर्डर। अगर नॉर्मल कोई सब्सटेंस लोगे जिसमें ऑर्डर नहीं है तो स्कैटरिंग ही होती है लाइट की, हर डायरेक्शन में होगी। लेकिन जब ये ऑर्डर में होती है तो वो स्कैटरिंग जो है उसका एक स्पेशल फॉर्म
हो जाती है, और जो स्पेशल फॉर्म होती है स्कैटरिंग की उसको हम डिफ्रैक्शन बोलने लगते हैं। उसमें डायरेक्शनल करेक्टर आ जाता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट मिलेगी आपको, स्कैटर्ड लाइट। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. और कोई डाउट किसी का? I think this session is over now. We should stop this recording.